ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. آج کا موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ شارٹ کٹس ان لائف. اور شارٹ کٹ صرف یہی نہیں کہ جی آپ نے گورا ہونا ہے تو کوئی شارٹ کٹ بتا دیں, ویلدی ہونا ہے تو کوئی شارٹ کٹ بنا دیں. اپنی ڈیزائرز کی مینیفیسٹیشن, یعنی اگر آپ تھوڑا سا بھی لا آف اٹریکشن کو پڑھتے ہوں, ان چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہوں, کہا جاتا ہے کہ جس چیز کی آپ جستجو کر رہے ہیں, جس چیز کی آپ خواہش کر رہے ہیں, وہ آپ کو ملے گی. The only thing is you yourself are standing in the way. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیلے نہیں کرنا چاہتا, آپ کو تڑپانا نہیں چاہتا, کوئی بہت بڑی آزمائش نہیں ہوتی. اٹ از دس دیٹ یو آر ناٹ ان الائنمنٹ ود یور ڈیزائر. اور جب آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں اور آپ اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے تو آپ شارٹ کٹس کی تلاش میں نکل جاتے ہیں. اب یہ شارٹ کٹس کیا واقعی آپ کو ہیلپ کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ میں سے کسی نے پولو کویلو کی کتاب الکیمسٹ پڑھی ہو تو اس میں وہ جو شخص ٹریجر کی تلاش میں نکلتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے وہ چلا ہوتا ہے, جو اس کا گھر ہوتا ہے, ایکچولی خزانہ وہیں چھپا ہے, لیکن وہ جو جرنی ہے وہ اس کو وردی بناتی ہے, وہ اس کو اس قابل بناتی ہے, ڈیزرونگ بناتی ہے کہ وہ اس خزانے کو پا سکے تو اس کا استعمال کر سکے. جب بھی آپ زندگی میں شارٹ کٹ یعنی اس سفر کو, اس جرنی کو اسکپ کر کے اپنے اینڈ گول تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کو بہت سارے دوسرے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اینڈ اٹ ایکچولی از ناٹ اے فیور ٹو یو. تو آپ کبھی کبھار کہتے ہیں نا یار یہ کاش جلدی سے ہو جائے, میں جلدی سے میٹرک ختم ہو جائے, جلدی سے انٹر ہو جائے, جلدی سے اچھی نوکری مل جائے. اینڈ وائی دس جلدی؟ آپ ڈزنی لینڈ کی رائڈس کی ریس میں نہیں ہیں کہ اگر آپ جلدی پہنچے تو آپ جلدی اس کے اوپر پہنچ جائیں گے. ہمیں اتنی عجلت کیوں ہے, اس پہ بھی بات کریں گے. اور شارٹ کٹس کے کیا فائدے یا کیا نقصانات ہیں, اس پہ بھی بات کریں گے. ہمارے پاس زبردست پینل موجود ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ ہمارے ساتھ ہیں محمد عمران بھائی. عمران بھائی از این اتھارٹی ان دس میٹر, چاہے وہ سائیکو تھراپی ہو, چاہے فلسفی ہو, چاہے اس کو دین کی روح سے لے کے چلنا ہو. ہی ہیز اے گڈ کمانڈ اوور ایوری تھنگ ایلس. بہت بہت شکریہ عمران بھائی فار میکنگ ٹائم فار اس. آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں corporate trainer par excellence. Again, these subjects of leadership, how some people are able to make the most of it in a short span of time versus others. اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے عائشہ نواب. تھینک یو عائشہ for making time. Thank you. اور آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں a literature enthusiast with over 16 years of experience in education management. کیونکہ لوگ کہتے ہیں نا وہ تربیت, وہ جو بیج ہے وہ تو اسکول میں ہی بویا جاتا ہے, تو وہاں پہ جانیں گے کہ پروڈکٹ آ کیسی رہی ہے اور اس کے اوپر کچھ کام بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ موجود ہے قرۃ العین رضا. تھینک یو قرۃ فار میکنگ ٹائم فار اس. آپ ہی سے شروعات کرتے ہیں. مجھے بتائیں کہ یہ جو شارٹ کٹ کی نیڈ ہے, یہ پیرنٹس کی نیڈ ہوتی ہے, یہ بچہ چاہتا ہے جو آپ کے پاس آتا ہے کہ جی نوٹس بتا دیں, صرف امپورٹنٹ بتا دیں, میم ایگزام میں آئے گا کیا, یا ہم اکثر باتیں سنتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ بہت جلدی ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ زندگی میں اگر جیتنا ہے, اس ریس میں اگر جیتنا ہے تو مجھے شارٹ کٹس چاہیے. کین وی ٹیک دیٹ مینٹالٹی اوے؟ Well, it is a social construct, yes. People think that جو لوگ جلدی آگے پہنچتے ہیں وہ زیادہ کامیاب ہیں. So we have people who say, oh, just teach us, things that we will be tested for. So we do have people who have great A stars and are academically very strong. But we always say کہ آپ کے grit develop نہیں ہوتی, اور تعلیم کے ساتھ تربیت کی بھی ضرورت ہے. اور تربیت یہی ہے کہ آپ جو سکھائیں وہ اپنی زندگی میں استعمال کر سکیں, not just subject and content. So yes, it is not just, I'm not going to stereotype, I'm not going to say it's just the parents or the students. I think it's just a social construct that everybody start internalizing کہ اگر یہ انسان اس عمر میں یہاں تک پہنچ گیا ہے یا اتنا کماتا ہے, materialistic جو ان کا سکسیس کا میجرمنٹ ہے, تو یہ بہت کامیاب ہے. اینڈ وی وانٹ آور چائلڈ ٹو بی دا بیسٹ. اچھا, اب انہی اسکولس اور یونیورسٹیز, اکیڈیمیا سے نکل کے بندہ پہنچتا ہے کام کی جگہ پہ. عائشہ, دیٹس ویئر یور ورک بگنس. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے عام طور پہ ہم سی وی کو دیکھ کے ایک بندے کو رکھتے ہیں, چھوٹا موٹا انٹرویو ہوتا ہے, اس کی انٹرپرسنل اسکلس کو ہم جج کرتے ہیں, واٹ ریئلی اسٹینڈز آؤٹ؟ کئی دفعہ جیسے انہوں نے کہا کہ پیپل مے ہیو اسٹڈیڈ اسمارٹ, ان کو شاید یہ پتا ہے کہ اس ایگزام کو کیسے ایس کرنا ہے, بجائے اس کے کہ آپ کو نالج اور کرافٹ پہ آپ نے زیادہ کام کیا ہے. جب یہ لوگ کام پہ پہنچتے ہیں اور چلیں شارٹ کٹ میں اچھی نوکری پہلے ہی جھٹکے میں مل گئی, are they able to perform? Okay, so the CV جو ہے نا, that is a very initial measure of someone. آج کل کے آپ اگر بچوں کو دیکھیں گے تو CV بہت اچھی بنا لیتے ہیں, وہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. But when they are actually stepping into the real world, وہ جو hard work ہوتا ہے نا, I feel like, I don't want to obviously point any fingers here, مگر there is a lot that needs to be done in that respect. They feel like اچھا چھوٹے چھوٹے, یہی آپ کی جیسا آپ کا آج کا ٹاپک ہے, شارٹ کٹس لے کے ہم لوگ ہر جگہ پہنچ جائیں گے, لیکن ایسے نہیں ہوتا. You have to go through the grind. There's a process of
actually becoming successful at something. So I just feel like that hard work by and large is missing, especially when it comes to this newer generation. जो वही है ना कि on paper तो हम अपने आप को बहुत अच्छा दिखा देंगे, लेकिन वो जब initially उस workplace में और environment में वो हिस्सा लेते हैं, then there is lacking that motivation. There is a gap. That motivation I feel is lacking to some degree. वो कहते हैं यार इधर मजा नहीं आएगा, हम जल्दी से कहीं और switch कर लेंगे. पहले हमारे वाले वो जमाने होते थे ना, when we used to, like I've been associated with my organization for almost 10 years now. Wow. So it's been a long journey and I've learned so much. Different. आपकी शख्सियत में ठहराव भी आता है, बहुत कुछ सीखते भी है, but this hopping phenomena. अच्छा, जो आपकी बात सुनकर मेरे जहन में आ रही थी इमरान भाई, imposter syndrome, यानी हमारे यहाँ सक्सेसफुल दिखना है दुनिया के लिए ताकि दुनिया ये वैलिडेट करे कि ओ आई हैव डन ग्रेट, लेकिन वो जो अंदर सिंक इन करने वाली बात होती है, मुझे सबसे पहले तो बताएं कि जो शख्स ये शॉर्टकट्स और ये जंपे मार के सांप सीढ़ी खेल के आगे बढ़ा होता है, इन देयर ओन हार्ट आर दे फीलिंग कॉन्फिडेंट? ये जो दुनिया उनके बारे में सोच रही है कि ये कामयाब है, क्या ये कामयाबी सिंक इन करती है? क्या अपने बारे में यही इनका भी ख्याल होता है या नहीं? देखिए, अगर उस रूल्स की वायलेशन हो रही है जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, वकाना इंसान अजूला, इंसान तो अपनी जिबलत में बहुत जल्दबाज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अमल में इत्मीनान अल्लाह की तरफ से है और अमल में जल्दबाजी शैतान की तरफ से है। तो अब जिस तरफ आप इशारा कर रही हैं कि अगर अमल में ये साफ नज़र आ रहा है, ये जल्दबाजी नज़र आ रही है, तो ये वो शैतानी चक्कर साफ नज़र आ रहा है, और जिसको जो थम के नहीं चलते वो गिरते भी इसी तरह ही है। और फिर वो जो जितनी जल्दी जो चीज मिली होती है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही वाली बात कि इतनी तेजी से मिला है तो जहन में कहीं ना कहीं ये खौफ भी तो होता होगा कि इतनी जल्दी से छिन भी जाएगा। होता भी है, और बाज़ दफ़ा ये होता है कि इतना तेज भाग रहे होते हैं और की तलाश में और की तलाश में और की तलाश में। हमने बगैर मेहनत के अपने 30 साल की जिंदगी में 4 कॉन्टिनेंट्स पे काम करके बगैर मेहनत के जितनों को इनहेरिटेंस मिली है उसको हमने यूं जाते हुए देखा है। तभी कहा जाता है कि अगर आपने कोई लॉटरी जीती है और आप अच्छे नहीं थे, विद इन 5 years देखा गया है कि वो तमाम लॉटरी के पैसे भी चले जाते हैं, आप वही फुकरे के फुकरे होते हैं यानी कोई आगे नहीं बढ़ पाते। आयशा जी, ये क्या आपका जहन इसको कैसे प्रोसेस करता है? आई जस्ट फील लाइक, देखें, शॉर्टकट्स मैं ये नहीं कह सकती कि हम लेते नहीं है। इट्स अ वेरी, आई थिंक हम सब लेते हैं, हमने एट सम पॉइंट, मैंने भी लिया है, सबने लिए होंगे एट सम पॉइंट, लेकिन वही वाली बात आती है कि आप किस तरह का शॉर्टकट ले रहे हैं, राइट? इट डिपेंड्स ऑन वेदर यू बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ। आप कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे हैं टू गेट टू दैट लेवल, बिकॉज आप वो गलत काम करेंगे तो देन इवेंचुअली कहीं ना कहीं that it is going to backfire. अच्छा, वही वाली बात कि शॉर्टकट से मुराद वो तमाम शॉर्टकट्स नहीं है, इसमें कुछ अच्छे भी होते हैं जो आपकी कन्वीनियंस के लिए होते हैं। मिसाल के तौर पे पहले जी सिलबट्टे पे मसाले पीसे जाते थे, अब अगर आपके पास ब्लेंडर ग्राइंडर है तो उस पर शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी को ज्यादा पुरआसाइश और आरामदेह बनाता है। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर आपके? शुक्र, आज गला खराब है, नज़ला जुकाम लग गया। ओहो, आप अच्छा सा कावा पीजिए, जो शानदार पीजिए, गला नहीं खराब होना चाहिए आपका। अच्छा सुने ना, ये जी जी, अच्छा, वो बुल्ले शाह ने कहा था, उसकी कलाम है, सीधा पेंडा न छड़िए चाहे मंजिल दूर हुए। सही, सीधा पेंडा न छड़िए चाहे मंजिल दूर हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह किसी शख्स के पास गए और अपना घोड़ा उसके पास छोड़ा और उसके लिए 2 दिरहम निकाल के रख दिए। जब वापस आए तो उसने वो बेच दी, घोड़े की काठी। हाँ। जब बेच दी, आप वापस आए तो आपने कहा मेरी काठी दो, उसने कहा जी मैंने तो बेच दिया। बोला कितने में? बोला 2 दिरहम में। हाँ। आपने जेब से निकाले, देखो तुम्हारे नसीब में 2 दिरहम से आज के दौर में हम शॉर्टकट कह सकते हैं, आपने गलत रास्ता चुना। तुम्हारे मुकद्दर में 2 थे, मैंने जेब में डाल दी। उसका ख्याल था खलीफा मुझे कुछ नहीं देगा, मैं घोड़ा संभालता रहूं। तो ये जो शॉर्टकट है, ये रेत की दीवार है, दूसरे का घर है, इसके अलावा इसकी कोई यकीन अंदर से आपको इत्मीनान नहीं होगा। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया अकरम साहब कॉल करने के लिए, और बड़ी अच्छी आपने बातें यहाँ पे की। लेकिन मुझे बताएं कि मैं इसमें वक्त
टेक्नोलॉजी जो जिद्दत है चीजों में और एक जनरेशनल गैप, उसको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। कुरतुलैन क्या कहेंगे? अक्सर बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि जब दे वर्क डिफरेंटली, उनका जहन मुख्तलिफ है, उनका दौर मुख्तलिफ है, वो कंप्यूटर पे बैठ के पढ़ाई करते हैं। अक्सर उनके पेरेंट्स उनको डांटे कि भाई जब हम तुम्हारी एज के थे तो हम तो हाथ से नोट बनाते थे, हम तो ऐसा लगता है रिडल बता रहे होते हैं ना कि हम पहले जाते थे, फिर आगे शेर आता था, शेर से बचा के फिर हम पैदल चलते हुए स्कूल जाते थे। यानी इतना एडवेंचर होता था उनकी जिंदगी में। Children get put off कि भाई आप क्या बातें कर रहे हैं, ये तो आजकल बहुत आसान है ये सब कुछ करना। That's so true. But like Sita, you said there are two ways. Like, there's working smart and then there's taking a shortcut. They're not the same thing. They're not the same thing. Yes. And our parents lived in a very different time. We live in a very different time than these kids. They can move through different screens. We can't. Like, if I was to give them Snapchat, तो मैं Snapchat को देख के थोड़ी परेशान हो जाऊँ, मेरा मुंह आ जाए उसको। So, and these kids work in a very different world. Just to, undermine this struggle. Is that particularly healthy? ये भी एक अलग डिबेट है ना। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं हम वर्क स्मार्ट कर रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी स्क्रीन्स हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे वक्त में बरकत कम है। वो अपने 24 घंटे में हमसे ज्यादा कर लिया करते थे, डिस्पाइट ऑफ दोज फैक्टर्स बीइंग स्लो। ये क्या माजरा है, ये जरूर इस पे बात करेंगे। वापस आते हैं इमरान भाई से भी पूछते हैं कि वो उनके पास ये टेक्नोलॉजीज, ये फास्ट मूविंग चीजें नहीं थी, लेकिन वक्त में बरकत पहले ज्यादा क्यों थी? आज इन तमाम सहूलतों और शॉर्टकट्स के बावजूद हमारे वक्त में बरकत क्यों नहीं है? एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक। जी जनाब अली, कुछ चीजों में शॉर्टकट वाकई अच्छा होता है, खासतौर पे अगर आपके घर में बहुत बड़ी दावत है तो यकीनन आपके लिए जरूरी है कि कुछ या तो टाइम की प्लानिंग भी कर लें और कुछ चीजों में आप शॉर्टकट्स का इस्तेमाल कर लें। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे कि जितना जल्दी कुछ मिलता है उतना ही जल्दी छिन जाता है, या इम्पोस्टर सिंड्रोम, ये कितना रियल है और इसकी वजह से आपकी शख्सियत पे क्या असर पड़ता है, इस पे बात करते हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, पहले उनके कॉमेंट सुन लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वही हैदर शाह बात कर रहा हूँ वाकई से। जी वही साहब, क्या कहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि आप इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं जिसमें ऐसे टॉपिक डिस्कस होते हैं कि जिससे हमारी भी एजुकेशन होती है। बहुत शुक्रिया भाई साहब। जी, शॉर्टकट के हवाले से ये है जी कि जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है, और जो शॉर्टकट के जरिए हासिल की हुई कामयाबी जो है वो पायदार नहीं होती। सही। इसलिए जो भी स्टेजेस होते हैं तो जिंदगी के, वो बाकायदा तय करके ही मकाम हासिल करना चाहिए। शॉर्टकट जो है वो कभी भी आपको पायदार कामयाबी नहीं दे सकता। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन भाई साहब मुझे बताएं कि हमारे माशरे में अक्सर चट मंगनी पट ब्याह होता है, तो वो भी तो शॉर्टकट है ना कि यकायक हो गया और उसके बाद वो शादियां कामयाब भी होती हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, वो तो एक अलग बिल्कुल ही टॉपिक है, क्योंकि उसमें तो आप 10 साल भी रिलेशनिंग रख के भी शादी करें तो वो भी नाकाम हो जाती है। वो नहीं कुछ कहा जा सकता। आपने कहा वो तो दाव है, वो तो गैम्बल है, वो आप खेल लें और आपकी किस्मत है। जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब कॉल करने के लिए। लेकिन यही सवाल इमरान भाई आपके लिए, मुझे बताएं कि वाकई मोहब्बत में, खुलूस में, इसमें शॉर्टकट्स हो सकते हैं? जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत कम अरसे में कोई शख्स आपके दिल में घर बना गया, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, कोई हो, कि मोहब्बत से, इखलाक से जीत लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको 10 साल भी आप साथ रहते हैं तब भी वो मकाम नहीं हासिल कर पा रहे होते। इसको आप कैसे देखते? देखिए, पहले तो चट मंगनी पट भी ना पहले सही था, हाँ, ना आज सही है, ना कभी सही होगा। बिल्कुल सही। उस वक्त उस वक्त एक प्रेशर था, हाँ, सोशल प्रेशर था, कल्चरल प्रेशर था, उसको रिलीजियस प्रेशर का नाम भी दिया जाता था। लेकिन अब क्योंकि प्रेशर नहीं तो आप देख रहे हैं कि उसका अंजाम क्या हो रहा है, तो वो कभी भी सही नहीं था। दूसरी बात है कि ये सही है कि बाज़ दफ़ा आपकी फ्लाइट में बैठने वाला शख्स आपके मुस्तकबिल का लाइफ पार्टनर भी बन जाता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी बन जाता है, यानी वो सफ़र आप बहुत जल्दी तय कर लेते हैं। लेकिन उसमें मामलात में खुलूस होता है। सही। और ये जो रिलेशनशिप है, ये मामलात का नाम है ना। जब आप निकाह में जा रहे हैं या रिलेशन कायम कर रहे हैं, अब ये मामलात का नाम है।
وہ معاملات جتنے صحیح ہوں گے, جتنا اس میں خلوص ہوگا, جتنا اس میں ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانے کی نیت ہوگی, اس میں ضرور برکت ہوگی. بالکل صحیح. عائشہ آپ کیا سمجھتی ہیں, از دیر اینی شارٹ کٹ ٹو لو؟ عام طور پہ لوگ تصور کرتے ہیں کہ لڑکی کا نکاح ہوا, جیسے اس نے 3 بول بولے تو بس یہ مجازی خدا ہے اور بس یہی ہے الفا اینڈ اومیگا, اور اس سے بے لوث محبت ہو گئی, اس کو کہہ رہے ہیں کہ بس مر مٹ جاؤ اس کے لیے. یہ ممکن ہے شارٹ کٹ؟ I honestly I'm a romantic at heart, so I do really believe in the concept of love. لیکن obviously جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور there is a lot that you have to struggle with also. You need to get to know your partner needs to get to know you. پھر جب آپ کے بچے ہوتے ہیں, پھر آگے جب آپ کی زندگی چلتی ہے, that's when you realize that love کی پکچر ہی کچھ اور تھی. Like the love I feel when I see my children, خاص طور پہ, that is something I cannot even describe in words. اتنی خوبصورت وہ فیلنگ ہے, لیکن یہ شارٹ کٹ سے نہیں ملتی. It is a daily struggle. Because you love them so much, you want to give them the best life, اور اس کے لیے آپ کو خود کتنے compromises کرنے پڑتے ہیں. So I don't think there's any shortcut, to be very honest, because وہ اس طرح کا جو love at first sight ہوتا ہے نا, وہ بڑا ہی short term ہوتا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ ہم نے موویز میں, ڈراموں میں, ہم نے وہ ایک گانا دیکھا ہوتا ہے جس میں وہ 10 سال کی جرنی دکھاتے ہیں کہ ایک دفعہ ملے, اگلے سین میں ان کی شادی ہوئی, تیسرے سین میں ان کے یہاں بچہ ہو گیا, پھر اس کے بعد بچہ, وہ جیسے پرانی موویز میں نہیں دکھاتے تھے, ہماری اماں تو وہ بیچ ڈھونڈتی رہ گئی جس میں آپ چھوٹے بچے کو لے جاتے تھے, وہ سائیکل پہ بیٹھتا تھا اور اگلے سین میں وہ بڑا ہو جاتا. امی کہتی میرا دل چاہتا تم سارے بڑے ہو جائیں 2 منٹ کے اندر, لیکن ایسا ہو نہیں سکتا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی, عمر بات کر رہا ہوں جالپور سے. جی عمر, کیا کہیں گے؟ جی, آپ کا ٹاپک تو بڑا زبردست ہوتا ہے. تھینک یو عمر. لیکن جی اچھا, اس ٹاپک کے بارے میں جی مسئلہ پتا ہے, ابھی آپ نے کہا نا کہ جی برکت نہیں رہی. برکت اس لیے نہیں رہی کہ ہم گریڈی ہو گئے, گریڈ کے چکر میں نا ہم تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. اور دوسری بات, ہم تو میسج لکھنے میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم بیسیکلی نا ساری قوم ہی شارٹ کٹ ہوگی. صحیح. اس کی وجہ سے ہمیں, اور لیکن یہ لانگ ٹائم میں آپ کو کام نہیں دیتا. شارٹ کٹ آپ کو کسی وقت کام دیتا ہے, ہر دفعہ نہیں آپ کو کام دیتا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمر. تھینک یو فار کالنگ اینڈ سیئنگ. اچھا, یہ آپ نے بڑی اچھی برکت کی بات کی. عمران بھائی, آپ کا تو اکثر واسطہ پڑتا رہتا ہے ہمارے گورنمنٹ کے محکموں سے, اداروں سے. مجھے بتائیں کہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے وین ایور آئی لک ایٹ دیئر ویژن اینڈ دیئر پلانس, دے آر اسپاٹ آن. ان کو ایگزیکٹلی پتا ہے کہ قوم کو, لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے. لیکن وہ کیا ہوتا ہے, اس کو آدھا کچا پکا فوری طور پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, شارٹ کٹس لگاتے ہیں, انکمپیٹنسی ہے, کیپیسٹی نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتی؟ انفارچونیٹلی جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کوئی بھی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں بنی ہے. کیونکہ 70 سال کی تاریخ, گورنمنٹ کا بھی شارٹ کٹ ہوتا ہے. اس کو بھی بیٹھتے کے ساتھ کہا جاتا ہے یہ کل نہیں ہوگا. تو جو آدمی کل نہیں ہوگا وہ کیسے, جب وہ خود اسٹیبل نہیں ہوگا تو ایک اسٹیبل پلان کیسے دے گا؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں آپ ایک بھی پالیسی نہیں ہے. کوئی 5 سالہ پالیسی کسی بھی ایشو کی آپ کوئی 5 سالہ پالیسی پوچھ لیجیے, ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے کیوں 5 سالہ پالیسی کیوں نہیں بنا رہا؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں 5 سال رہوں گا یا نہیں رہوں گا. تو جو آدمی ڈے ٹو ڈے کام کر رہا ہوگا وہ یہ اسٹیبلٹی اور یہ ساری چیزیں یا 100% اپنی امپلیمنٹیشن کرے گا کیسے, وہ پلان کرے گا کیسے, فیزیبلٹی کرے گا کیسے. پھر فیتے بھی لگنے ہیں, بھی لگنی ہے, تقریریں بھی ہونی ہے. 2 مہینے میں یہ ہو جائے گا, 6 مہینے میں یہ ہو جائے گا, 1 ہفتے میں یہ ہو جائے گا. اور اب بڑے ڈیئرنگلی آ کے مطلب فیس بھی کر لیتے ہیں. یہ بڑا سب سے بڑا سرپرائز یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ ہی ان کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ شارٹ کٹ کے ساتھ ساتھ ہماری میموری بھی تو شارٹ ٹرم ہو گئی ہے نا, ہم بھول جاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. قرۃ العین, آپ کی طرف آنا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ ان یور کریئر ایز ویل, آئی ایم شیور آپ نے اپنے سینئر سے بہت سیکھا ہے. ہم آج کل اتنی جب یوتھ کی اور شارٹ کٹس کی اور نئے طریقوں کی بات کرتے ہیں, مجھے ایسا لگتا ہے وی آلویز ٹرائی ٹو گیو دس ون میسج ٹو آور سینئرز کہ آپ کا وقت گزر گیا ہے. آپ کے وقت میں بڑی محنت ہوتی تھی, آپ بڑے سلو ہیں, آپ کا پروسیس بہت لمبا ہے, ہم تو شارٹ کٹس جانتے ہیں. سو از دیٹ ریئلی ٹرو, یا آپ کو لگتا ہے کہ سینئر سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, ان کے پروسیس سے, ان کے وزڈم سے, ان کے تجربے سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ Like I said before as well, the way younger people work and older is different. It's not better or worse. اور جو ایکسپیرینس سے آپ دوسروں کے سیکھتے ہیں, I think I've been very open to learning, and I think all my learning is I can ascribe it to the people who are older than me or who has more experience. In fact,
यंग लोगों को जगह देने वाले भी बड़े ही होते हैं, वही हमारे लिए जगह बनाते हैं, वही हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और बड़े लोगों की अक्सर शॉर्टकट्स उनसे पता चलते हैं, यानी अगर आपको कोई चीज बनानी ना आती हो, आप किचन में खड़ी हैं या कोई नई सिलाई कढ़ाई कर रही हैं, एट टाइम्स आई डोंट नो द प्रो टिप्स, उनको हम हैक्स कहते हैं, वो भी तो शॉर्टकट्स है ना, जिसके तरीके से आपको पता चलता है कि ये काम, ये टाइम आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं। सो आई थिंक ओल्डर पीपल हैव अ लॉट ऑफ विजडम, और उस विजडम से हमें फायदा उठाना चाहिए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, आइए उनकी बात सुनते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मैं इजाज बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी इजाज साहब, क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि हमारी कौम में ना जुगाड़ डालने की आदत बढ़ गई हुई है। अगर कौम एज एनहेंस कर कौम को देखें तो उनका काम ये है कि वो जल्दी जल्दी, और उन लोगों को वो ज्यादा, मतलब वो लोग ज्यादा कामयाब हैं जो जिस हुक जो भी कमाया वो सिस्टम सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। तो इसलिए जो पाथ है वो तो यही नजर आ रहा है कि शॉर्टकट ही बेहतर है। मगर ये है कि हमने ये देखा कि इनहेरिटेंस में जिन लोगों ने भी प्रॉपर्टी ली है वो बर्बाद हुए हैं, अगर उनको एक्सपीरियंस नहीं है, नॉर्मली ये देखा गया। और मतलब बात ये है कि कहने को ये किताबी बातों में बहुत अच्छा है, मगर पाकिस्तानी मुआशरे के मुताबिक सक्सेसफुल वही है जो कामयाब है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि सक्सेस या मिसाल के तौर पे एक तरफ हम कह रहे हैं कि नहीं जी शॉर्टकट मत अपनाओ, लेकिन साथ ही अगर किसी ने 30-35 साल की उम्र तक अपना घर नहीं बनाया, एक आध प्लॉट नहीं खरीदा है, बज़ाहिर उसके पास सेविंग्स नहीं है, तो हम उस शख्स को बुरा भी महसूस कराते हैं, हम उसको बार बार ये कहते हैं कि तुम नाकाम हो, तुम तो फेलियर हो, तुम तो लेट हो गए हो, तो फिर वो शख्स तो फिर शॉर्टकट ही अपनाएगा ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि इस टाइम जो हमारा मुआशरा जिस तरह को जा रहा है वो बेसिकली तो यही है। किताब में कहने को तो ये बिल्कुल सही है कि आपको सही तरीके से किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने सही तरह बनाए। अगर कोई बंदा बीमार होता है, वो अगर स्टार्ट में हाइपोटेंसी खा लेता है तो बाद में उसको कितनी तकलीफें होती है वो बाद में पता लगता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये बिल्कुल ऐसी मिसाल है जैसे लोग जिम जाते हैं और विद इन 1 वीक वो चाहते हैं कि उनके मसल्स भी बन जाएं, उल्टी सीधी प्रोटीन्स, केराटिन, जो कुछ उनको दिया जाता है शॉर्टकट के लिए वो इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ दौलत और जिंदगी में स्टेबिलिटी, इस पर हम जरूर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि एक तरफ माशरा बार बार लोगों को कहता है कि लड़की है 30 साल की उम्र तक उसकी शादी बच्चे नहीं है तो वो फेलियर है, 35 साल की उम्र तक एक मर्द के पास अगर घर नहीं है तो वो फेलियर है। तो फिर ये रेस में तो आप खुद ही डाल रहे हैं ना इन लोगों को। लेट्स टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, बात हम कर रहे हैं शॉर्टकट्स की। खुद ही रेस में डालते हैं, खुद ही कहते हैं कि फलानी उम्र तक पहुंचने तक घर बार बच्चे पैसा दौलत गाड़ी सब होनी चाहिए, और फिर बुरा भी मानते हैं जब लोग शॉर्टकट्स लगाते हैं। इमरान भाई, ये तो खुला तजाद है, क्या करें इसका? देखिए, हम खुला तजाद ये कि हम हार्ड एंड स्मार्ट वर्क को नहीं समझ रहे ना। वी हैव टू वर्क स्मार्ट, वी हैव टू वर्क हार्ड। इस फास्ट पेस में आप स्लो नहीं चल सकते, लेकिन किसी की कॉस्ट पे नहीं, किसी के जख्म पे नहीं, राइट? ये फर्क सिर्फ ये है कि आपको स्मार्ट वर्क करना है, मल्टीटास्किंग करनी है, टेक्नोलॉजी से जरूर फायदा उठाना है, और उसके ऊपर आपको अपने गोल सेट करने हैं। और फॉर श्योर जो जितने पैसे मेरे फादर ने कमाए थे उसकी हाफ ऑफ मेरी लाइफ के अंदर मैं उससे ज्यादा पैसे कमा चुका। मैं चाहती हूँ तो कि इसका ये मतलब नहीं था कि मैंने कोई जुगाड़ की है। आई जस्ट No, but I want you to give advice to people. देखिए, हमारी जो आज we don't have a psychologist on board, लेकिन यूजुअली जैसे हम बात करते हैं कि हमारे जितने ट्रिगर्स हैं, जितनी एहसास महरूमी है, इमरान भाई, वो तो बहुत बचपन में हम पे सीड की जाती है ना। आप मुझे ये बताएं कि जब ये अब मौका आने वाला है, ये दिसंबर में बड़ी तकरीबात होनी है, फैमिली से आप फेस टू फेस होना, आप समझ रहे हैं आपकी बड़ी हीलिंग हो गई है, फिर आपकी फुप्पो खाला फैमिली सबसे आपने मिलना है, वही बातें सुननी है। किसी लड़की को कहा जाना है तुम्हारी शादी अभी तक क्यों नहीं हुई है, लड़के को कहा जाना है तुम्हारी नौकरी अभी तक क्यों नहीं हुई है, अभी तक तुम वही काम कर रहे हो, तुम्हें ये करना है। इन सब चीजों को हम फेस कैसे करें, क्योंकि ये बहुत तकलीफ का बायस बनती है लोगों के लिए। एक बड़ा आसान उसूल अपने ऊपर अपना के कि आप किसी को कुछ भी बोलने से नहीं रोक सकते। ओके। ये आप किसी इंसान के ऊपर ये इख्तियार ही नहीं है। आप मुझे मैं कुछ भी बोल दूं, आपका इख्तियार ही नहीं है कि मुझे रोक सके। उसके बाद मुझे जूते लगाएं, वो इख्तियार है। हाँ। या रो लें, या सर पटक ले, पैर पटक ले, वो इख्तियार है। जो मैं कह गया हूं ना, मुझे नहीं रोक सकते। हाँ। तो हर इंसान कुछ ना कुछ बोलता है। सही। और कभी दुनिया में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी इंसान को सारी दुनिया ने कबूल कर लिया। ये पैगंबर भी इस्तिस्ना, उनको भी यह हासिल नहीं है। उनको भी बहुत सारे लोग नहीं मानते थे, उनकी फैमिली के भी नहीं मानते थे। तो अब हमें ये सीख लेना चाहिए एक दो प्रिंसिपल के, कोई कुछ भी बोल सकता है
उसको मुझको अपने ऊपर एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का इख्तियार मेरे पास है। दूसरी चीज वो कह क्या रहा है, अगर यार ये तुम्हारे पास शर्ट, ये कलर तो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, यार अरे उसने तो शर्ट बोली है भाई, योर शर्ट इज नॉट यू। अपने आप को अपने उस शर्ट से बाहर निकाल लो, चीजों को पर्सनली निकाल लो। तो उससे ये होगा कि अगर आपने ये दो चीजें एक्सेप्ट कर ली, एक बात। दूसरी बात ये कि एहतराम अपनी जगह, बड़े भी गलत हो सकते हैं और बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि बड़े जो है वो जो बात कह रहे हैं वो गलत हो सकती है, हो सकता है अपनी इनोसेंट में, अपनी किसी भी वजह से बोल रहे हैं, वर्ल्ड व्यू से बोल रहे हैं, उनका तरीकेकार दुनिया को देखने का मुख्तलिफ है। बिल्कुल सही। आयशा जी, अक्सर लोग जब शॉर्टकट लेने के बाद पछताते हैं जैसे, और वी डोंट लेट देम forgive themselves. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं चाहती हूँ कि आज की कॉन्वर्सेशन में आए। किसी ने चलें जी कोई गलती कर ली, एंड दिस इज हाउ आवर एंटायर जुडिशियल सिस्टम इज एज वेल। हम रेट्रिब्यूटिव हैं बजाय रेफर्मेटिव होने के, कि हम उसको सजा देते हैं, उसको और पक्का मुजरिम बना देते हैं। आपके ख्याल में व्हाट डू वी नीड टू डू अगर हमें पता हो कि हमारे किसी करीबी ने कोई शॉर्टकट लगाया था, वो शॉर्टकट फॉल फ्लैट कर गया, उसने अपना नुकसान कर लिया, ऐसे शख्स को किस तरह की सपोर्ट की जरूरत होती है? आई थिंक द फर्स्ट स्टेज इज एक्सेप्टेंस। ठीक है कि ये अच्छा गलती हो गई है, डू दे एक्सेप्ट कि हाँ मुझसे गलती हुई है, आई शुडंट हैव टेकन द शॉर्टकट, और मुझे जो है प्रॉपर चैनल के थ्रू ये काम करना चाहिए था। आई थिंक इफ दे एक्सेप्ट इट देन यू शुड गिव देम एवरी काइंड ऑफ सपोर्ट दैट यू पॉसिबली कैन। ये कहाँ किस तरह से आप वहां से बाउंस बैक बेसिकली करें, बिकॉज हमारे यहाँ आई थिंक प्रॉब्लम ही आती है कि वी आर नॉट टॉलरेंट इनफ। ऑल्दो ये बज़वर्ड्स हर जगह पे हैं कि टॉलरेंस लाएं जी, डाइवर्सिटी लाएं, लोगों की बातें सुने, ओपिनियंस को ऑब्जॉर्व करें, लेकिन इट्स नॉट दैट नेचुरली नहीं आता ये। आपके ख्याल में विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन ये चीज मौजूद है कि अगर किसी यंगस्टर ने अपनी तरफ से वर्क स्मार्ट करते हुए कोई शॉर्टकट लगाया, बड़ा नुकसान कर दिया, क्या इदारे, क्या कॉर्पोरेशंस, क्या ऑफिसेज उसको लेट गो करते हैं? आई थिंक इट डिपेंड्स विद अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। होता ये है कि आई थिंक वो फर्स्ट चांस एक दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन ऑब्वियसली सिवियरिटी कितनी है उस मिस्टेक की। फर्स्ट चांस दिया जाता है, सेकंड चांस दिया जाता है, उसके बाद इफ इट बिकम्स अ हैबिट या फिर वो बिहेवियर बहुत दफा जब होने लगता है, देन देयर इज ऑब्वियसली टर्मिनेशन। अच्छा, यही सवाल कुरत आपके पास, बच्चे जब शॉर्टकट लगाते हैं, सही गलत का फैसला नहीं कर पाते, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में पढ़ते हैं, मिसाल के तौर पे दे ट्राई टू चीट इन देयर एग्जाम, या किसी को अपने साथ मिला के पेपर आउट किया, ये आपको पता चल गया, हाउ विल अ स्कूल और योर ऑर्गेनाइजेशन डील विद द चाइल्ड? या आपका अपना स्टूडेंट है तो आप कैसे डील करेंगे? I think I would just elaborate on that. If this person realized, the consequences of their action, they realize they've made a mistake. I think failure जो है पकड़ा गया तो तब उसको पता चल गया मिस्टेक हो गई है, क्योंकि उसको बहुत शर्मिंदगी हो रही है और उसको डर भी लग रहा है कि आप उसको पनिश करेंगी। तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो सही रियलाइजेशन है या नहीं, लेकिन एक बच्चे ने शॉर्टकट करने की कोशिश की थी, उसके पास से फर्रे पकड़े गए या कोई और चीटिंग का मवाद आया, हाउ विल यू डील विद देम? I think if this person has remorse, like you said, it's reformative. School is the place where you teach them. We cannot shun our kids. अब ये नहीं बोल सकते चलो भाई तुम जाओ, हमारी शक्ल नहीं देखेंगे दोबारा. We can't shun them. And I think forgiveness के लिए और उनको एक, अगर हम उनके लिए path set करें, if you've done this mistake, perhaps you should do this, and you say okay, there's a consequence of this, but we also forgive you. Like not bring it up again and again. हमने ऑफिस की बात कर ली, स्कूल की बात कर ली. आई वुड लाइक टू क्लोज. इमरान भाई, अगर घर में पता चले कि किसी से कोई शॉर्टकट लेते हुए गलती हो गई है और वो नुकसान उठा रहा है, कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, बिहेवियर इज नॉट द आइडेंटिटी. तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, बच्चा काम गलत हो गया, बच्चे बहुत अच्छे हो, काम गलत हो गया, तो काम पे डिस्कस करेंगे. बच्चे पे नहीं, झूठे हो तुम, फलाने हो तुम, दिमागे हो तुम, ये हो तुम, वो, और फिर कुछ नस्लों तक भी चले जाते हैं, और फिर एक माँ बाप एक दूसरे की नस्लों पे भी चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये हो गया. तुम्हारे ननियाल में सारे ऐसे हैं ना, तभी तुम ऐसे हो. हाँ, तुम्हारे डीएनए की खराबी है. ओके, तो वो वहां तक चली जाती है कि ना कुरून उला तक बात पहुंच जाएगी. इसलिए उस बच्चे के ऊपर जो वो है, इसका शॉर्टकट यही है. इसका शॉर्टकट यही है कि तुम बच्चे बहुत अच्छे हो, काम गलत हो गया है, काम को चेक करते हैं, लेकिन ओन करना पड़ेगा. अदरवाइज तो फिर वो, मैं अक्सर अपने प्रोग्राम्स में ये कहता हूँ कि जिस दिन बच्चा माँ से या बाप से पहली दफा झूठ बोलता है, उस दिन माँ बाप को बहुत शर्मिंदा होना चाहिए. माँ बाप को. इसका मतलब ये कि आपने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा कि वो अपने डिफेंस में झूठ के अलावा कुछ कर सकता है. बिल्कुल सही. सो इट इज योर फेलियर, नॉट द चाइल्ड्स फेलियर. अगर आप इसको समझेंगे तो शायद आपके अंदर कंपैशन और एम्पैथी ज्यादा होगी. बहुत शुक्रिया. इमरान भाई हमारे साथ मौजूद थे, आयशा एंड कुरतुलैन. इट वाज अ वेल राउंडेड डिस्कशन, बहुत सारे एंगल्स कवर किए. देखिए, शॉर्टकट लेना या जल्दबाजी करना हमारी जिबिलत का हिस्सा है, लेकिन उसमें एथिक्स को नहीं भूल जाना है.
صحیح اور غلط اور دوسرے کے نقصان کو یا دوسرے کے ساتھ آپ بہت زیادہ کرولٹی کے ساتھ تو نہیں پیش آ رہے, یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ سے ایسی غلطی ہو جاتی ہے, لائف از ٹو لانگ اینڈ یو کین آلویز باؤنس بیک فرام ایوری فیلئر. پہلے آپ کو خود اپنے آپ پہ یقین رکھنا پڑے گا اور دوسروں کی ٹائم لائن فالو مت کریں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ فلانی ایج تک آپ کے پاس یہ چیزیں ہونی چاہیے, یہ ان کا ذہن کہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس وقت اگر دنیا میں 7 ارب لوگ ہیں, ہر ایک کی ڈیسٹنی, ہر ایک کی جرنی, ہر ایک کی ٹائم لائن مختلف بنائی ہوگی. آئی ہوپ دیٹ یو ول پے ہیڈ ٹو دیٹ. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. خدا حافظ.